Hi friends, welcome back to Cubicle Talks with Avik. Today's topic is very unique topic because I've been getting numerous comments on my Instagram and my YouTube channel in terms of making requesting me to make such video. So the topic of today's video is what today's corporate youth needs to understand. Yes, what today's corporate youth needs to understand. So let's go ahead. So many a times I've been getting a comment, numerous comments that sir, let me know whether an average paying salary which you are getting in your current company and which has a very good job security is good, or whether a company which is paying me about 70% more but I am not sure about the job security, which should I choose? Should I tend to stay in my current organization, or should I just leave and take risk? So iske upar I am making this video because this will be very useful there, though there will be numerous topics available on YouTube on this, but my points and my topics are very average from a point of a very average working crowd. It's not from a point of very intelligent working crowd that they can take risk and they'll do anything they want and they'll just crack the numbers and all. But these points are very relevant if you see from a very average working corporate youth. So let's go ahead. सो पहले ये चीज हम लोग कवर करते कि अगर आप एक नौकरी पे हो, वेदर वेर इन यू आर गेटिंग एन एवरेज सैलरी एंड वेर इन द कंपनी हैज अ गुड जॉब सिक्योरिटी, तो क्या क्या एडवांटेजेस है. So let's go with this particular thing first, and then I'll cover the other bits as well. So the advantages would be if you are staying in a company wherein you are getting a very average salary, but there is a job security. The number one is the flexibility. Yes, the flexibility comes into picture because you have been working in that company for more than 2-3 years, and you know the management's vibe, you know your manager well, you know your colleagues, you know your stakeholders and everything. And because you have worked for so many years, you automatically have that confidence from your management that you are flexible. आप कभी भी छुट्टी ले सकते हो, प्लान लीव ले सकते हो, कभी भी आप 1 घंटा पहले जा सकते हो, 1 घंटा लेट लॉग इन कर सकते हो बिकॉज ऑफ सम वैलिड रीजन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियर कि कुछ भी झूठा एक्सक्यूज देके ऑफिस घुसना, बट कुछ अगर कोई दिन आपको बहुत अर्जेंट काम हो गया तो आप क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी ले सकते हो यहाँ पे. ये सब चीज़ का बहुत बड़ा एडवांटेज है. Second advantage would be, your I was talking about your plan leaves. Yeah, you can, आप कभी भी छुट्टी ले सकते हो प्लान करके. आप मैनेजर के साथ बात कर सकते हो कि मेरे को ये छुट्टी देनी चाहिए, मैनेजर दे भी देगा बिकॉज overall the culture is very chilled. Like the work volume is average. The stakeholders are understanding, your manager's manager is understanding, so on and so forth. So manager automatically he will tend to approve your leave. यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है कि you have that comfort level with your reporting manager. In this type of companies, the manager also is in a very chilled out mode. Chilled out mode मतलब ये नहीं कि मैनेजर कोई काम नहीं कर रहा है. मैनेजर के पास बहुत काम कर रहा है, मैनेजर बहुत काम कर रहा है, बट वो जो एक फालतू का प्रेशर होता है ना मैनेजर के ऊपर कि अभी चाहिए, अभी डिलीवरेबल्स दो, कल दे दो, परसों दे दो, इसका क्या, वो ना उंगलीबाजी नहीं होता ये सब कंपनीज में. यहाँ पे ना योर मैनेजर हैज बीन गिवन अ सर्टेन टास्क. So it is applicable to you as well, that he or she gets a certain set of task and they need to complete within the timeline. अगर नहीं होगा तो डंडा पड़ेगा. वो तो सब जगह होता है यार, ऐसा कोई फ्री का काम नहीं करवाएगा. बट आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रीबीज. इन टर्म्स ऑफ द फालतू का जो टेंशन होता है ना, वो चीज़ नहीं रहता. तो मैनेजर अगर आपका चिल्ड आउट रहेगा ये सब चीज़ों में, तो आपको भी हील एंश्योर दैट यू ऑल्सो गेट दैट सेम ट्रीटमेंट. सो ये चीज़ होता है. और जिस कंपनी में ना आपका मैनेजर अच्छा रहेगा एंड यू बी कंफर्टेबल विद द मैनेजर, बहुत आसान होता है आपको अपने आप को प्रूव करना, अपने आप को दिखाना कि यू आर वर्किंग रियली गुड, एंड वो नंबर्स क्रैक करना ना बहुत आसान होता है. ये चीज़ देखना. एक चीज़ और है कि ज़्यादा ओवर टाइम भी नहीं होता है सब कंपनीज में, बिकॉज ओवर टाइम कहाँ होता है, यहाँ पे फालतू चीज़ें का ना
जहाँ पे मतलब काम से ज़्यादा ना हवाबाजी होता है, वो उधर उधर ना आपको ओवर टाइम करना पड़ता है यार। 9 घंटा काफ़ी नहीं, अगर आप एक जगह में बैठ के काम करना चालू करो, लंच ब्रेक छोड़ दो, 8 घंटा आपके पास है, isn't 8 hours enough for your work? जहाँ पे ज़्यादा मीटिंग्स नहीं होता है, बहुत सारा बिग फोर्स में होता है कि ना मीटिंग ज़्यादा होता है, दे आर नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड बट दे आर मीटिंग ओरिएंटेड। मतलब मीटिंग के बैक टू बैक मीटिंग्स यार, 9 बजे से लेके 3 बजे तक अगर एक बंदे को आप मीटिंग में बैठा के रखोगे तो काम कैसे करेगा, काम कैसे हो पाएगा? तो नेचुरली ही और शी विल गो विद द ओवर टाइम थिंग, राइट? सो ये सब चीज़ अगर जिस कंपनी में नहीं है ना, तो मन की शांति भी है। सो ये चीज़ है। अनदर थिंग वुड बी, ये सब कंपनी में जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैनेजमेंट चिल्ड आउट रहे, मैनेजमेंट चिल्ड आउट मतलब मैनेजमेंट इज ओके, दे आर वर्किंग टुवर्ड्स योर द रेवेन्यू जनरेशन, दैट्स ओके। बट जहाँ पे मैनेजमेंट ना बहुत इम्प्रैक्टिकल हो जाता है ना, वहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज दे विल टेंड टू हायर एंड फायर। अगर एक न्यू ज्वाइनी है, मैं बता रहा हूँ मैं, अ न्यू ज्वाइनी शुड गेट एटलीस्ट मिनिमम 5 to 6 months टू come to that level of existing employees in terms of the performance। आप ज्वाइन करवा के ही बता रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो काम चाहिए, मुझे क्यों नहीं हुआ, भाई वो तो भाग जाएगा 6 महीने में, कोई नहीं रहेगा, भाग जाएगा वो। either they will switch over to his go back to his previous organization or he will look for change। तो ये चीज़ होता है कि जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा रहता है, बिकॉज द मैनेजमेंट डज नॉट टेंड टू टर्मिनेट एनी वन जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग ले ऑफ, द कंपनी डजंट डू इट। तो ये चीज़ बहुत है। तो ओवरऑल अगर ये चीज़ देखोगे ना, तो दीज आर द एडवांटेजेस। अभी डिसएडवांटेज और कॉन्स क्या है सब कंपनी में? डिसएडवांटेज है, अगर आपके सर पे कोई लोन है, भारी लोन है, और आप सोच रहे हो कि गुड़गांव में मैं तो 4 करोड़ का घर खरीदूंगा, 3 करोड़ का घर खरीदूंगा गोल्फ कोर्स रोड में, सोना रोड में, वो सब नहीं हो पाएगा, बिकॉज यू आर गेटिंग अ वेरी एवरेज सैलरी एंड नो बैंक वुड गिव लोन फॉर सच अ सैलरी। तो ये एक डिसएडवांटेज है बहुत। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हो कि मुझे तो स्विफ्ट नहीं चलानी है, मुझे चलानी है एकदम फॉर्च्यूनर, मुझे चलानी है स्कॉर्पियो एन जो 30 लाख की है, तो ये सब अगर आपका एम्बिशन है ना, तो फिर यू कैन स्विच ओवर टू द कंपनी विच इज पेइंग यू हाई। तो ये चीज़ है। तो फिनेंशियल बर्डन इज रियली मोर, वेर इन नॉट मोर आई वुड से, if you are a person who has a financial burden in terms of the loan, बहन का शादी करवाना है, ये वो, बच्चे को अच्छा स्कूल भेजना है, इंटरनेशनल स्कूल भेजना, तब तो फिर आप इस कंपनी में मत रुको, आप यू स्विच हो। सो ये it depends, and there is nothing right and wrong doing this, because each individual has their own perception or each individual has their own ambition। so ये चीज़ है। एक चीज़ मैं बहुत बार बोलता हूँ कि एडवांटेजेस में फिर से जाऊंगा वापस, कि अगर द एडवांटेजेस ऑफ स्टेइंग इन अ कंपनी वेयर इन द सैलरी इज एवरेज, द बोनस इज एवरेज, बट द जॉब सिक्योरिटी एंड द वर्क लाइफ बैलेंस इज गुड, इज अ वेरी गुड एडवांटेज विच इज योर मेंटल वेल बींग। यार मन की शांति है तब जाके आप काम कर पाओगे ना। अगर ऐसा कंपनी में गए कि जहाँ पे मन की शांति नहीं है, सुबह 9 बजे से लेके शाम 7 बजे तक आपका बॉस का डंडा पड़ा रहता है, फिर बॉस का फ़ोन आएगा, ईमेल स्टिंकर ईमेल्स है, भाई कैसे करोगे काम? 1-2 साल 5 साल चला लोगे, 6 साल के बाद ना, आजकल क्या होता है यूथ में पता है, ज़्यादातर इफ़ यू आस्क एन एवरेज कॉर्पोरेट क्राउड, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, उनका सबसे बड़ा समस्या है आज के दिन में इज द मेंटल वेल बीइंग। यार वीकेंड में भी आप शांति से नहीं रह पाओगे घर पे, क्योंकि मैनेजर का फ़ोन आ जाएगा। अगर मैनेजर का फ़ोन नहीं भी आए ना, तो मैनेजर का आप सोचो कि मंडे मुझे ये करना है, मंडे मुझे वो काम करना है, मेरे को KPI का रिजल्ट देना है, मुझे ये करना है, मुझे एस्केलेशंस का जवाब देना है, तो आप कभी भी मेंटल फटीग इतना ज़्यादा हो जाएगा ना, तो आपको और भी ज़्यादा बीमारी हो जाएगा। आजकल बहुत बार सुने होगे कंपनी में ना, वाइल वर्किंग the employee has kind of they have gone senseless, or
ड्यू टू द फटीग और मेंटल इलनेस दे हैव कोलैप्स्ड। क्यों होता है? इसके लिए मेंटल वेलनेस। अगर भाई जान है तो जहान है, मैं तो यही बताऊंगा। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। बट लोगों को बहुत लगेगा कि क्या बता रहा है यार, ये सब बकवास है, सबसे अच्छा सबसे बढ़िया है कि यू ज्वाइन अ वेरी हाई पेइंग सैलरी, ये सब बोलने की बात है। ठीक है भाई, as I've said, there is nothing wrong or right in this, in terms of doing this, but this is the thing. I was just coming back to the disadvantage of working in a company which has an average, which is giving an average salary, but I could not find many disadvantage, but only one disadvantage is your financial ability. So that's the thing. Now coming back to the high security, high paying jobs, which is paying you very high good amount of salary and bonus, उसका डिसएडवांटेज क्या है? उसका डिसएडवांटेज है बहुत ज़्यादा। एक तो है मेंटल वेलबींग। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप ना पागल हो जाओगे इस कंपनी में काम करते करते। आपको लगेगा कि भाई मेरे को, भाई जितना ज़्यादा सैलरी ना उतना ज़्यादा खून चूस लेते हैं वो लोग। तो आपको लगेगा कि आई एम नॉट जस्ट डूइंग जस्टिस टू माई सैलरी आई एम रिसीविंग, एंड योर मैनेजर वुड ऑलवेज थिंक दैट आई एम पेइंग, my budget is going towards this particular employee or towards this particular position every year. So क्या कर रहा है वो? कुछ नहीं कर रहा। ऑटोमेटिकली यू विल बी इन अ मेंटल प्रेशर, बिकॉज मैनेजर को भी डंडा मिल रहा है ऊपर से, तो आपका मेंटल वेलबींग एकदम खतरे में आ जाएगा। जितना अच्छा पोजीशन, जितना अच्छा सैलरी, जितना हाई सैलरी, उतना ज़्यादा ब्रेन डैमेज, ये मान लेना। ये दिस इज प्रैक्टिकल गाइज। आई एम नॉट, मैं इधर उधर का बातें नहीं कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल है वही बता रहा हूँ। तो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। सेकंड डिसएडवांटेज इज यू विल नॉट बी एबल टू गिव टाइम टू योर फैमिली एज वेल। कभी भी कर नहीं पाओगे फैमिली को टाइम दे रहे, आप दे नहीं पाओगे फैमिली को टाइम। आप घर पे काम लेके आ रहे हो, घर पे लैपटॉप खोल के बैठ जाओगे, खाने के पास अब बीवी बच्चा है, माँ बाप है, बैठ के क्या कर रहे हो? खाना खा रहे, रोटी खा रहे हो और लैपटॉप में काम। क्या फ़ायदा है ऐसे नौकरी का यार? दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज। थर्ड वुड बी आपका फैमिली फंक्शन, आपका फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना तो भूल जाओ, बिकॉज वीकडेज में तो ऐसे ही आप 9 बजे ऑफिस जाओगे, 10 बजे घर आओगे, क्योंकि आपका 2 घंटे ट्रैफिक लगेगा। आपका हाई पेइंग जॉब्स, अगर आप दिल्ली में हो तो हाई पेइंग जॉब्स, एकदम बढ़िया वाला जॉब इधर आपको नोएडा में मिलेगा, नहीं तो गुड़गांव में मिलेगा। और इफ इन बैंगलोर, इधर दैट ऑफिस इज इन वाइटफील्ड, और इधर योर ऑफिस वुड बी इन इलेक्ट्रॉनिक सिटी और दैट पार्ट ऑफ बैंगलोर वेरी मान्यता टेक पार्क के पास, तो वहाँ पे है, तो ट्रैफिक में ही आपको 1.5 घंटा लग जाएगा। तो अब बाय द टाइम यू गेट आउट ऑफ द ऑफिस यू विल बी ऑलरेडी ड्रेन्ड आउट। फिर उसके ऊपर बस गाड़ी में बैठ जाओ, कैब में बैठ जाओ, वो ट्रैफिक झेल के आपको घर जाना है, तो ऑलरेडी आप घर जाके क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। अब जाके बस खाना खाओगे, थोड़ा फिर भी आप लैपटॉप खोल के चेक करोगे, बस सो जाओगे, दूसरे दिन सेम रूटीन। वीकेंड में आपको लगेगा भाई माफ़ कर दे, आप बोलोगे अपने घर वाले को कि भाई माफ़ कर दे, मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझे सोने दो, क्योंकि आप यू वुड बी सो मच ड्रेन्ड व्हेन यू आर वर्किंग इन दिस सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कहीं जाओ बाहर, कहीं फैमिली को घुमाने ले जाओ, कहीं मासी का घर चले गए, कहीं बुआ का घर चले गए, आपको मन ही नहीं करेगा। सो यू विल बी सोशली, आई वुड से यू विल बी सोशली डिटैच्ड इफ यू आर इन दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। एक चीज़ है, जितना भी अच्छा अपने आप को प्रूव करना चाहोगे कंपनी में, हाई पेइंग जॉब्स में, काफ़ी नहीं होगा। मैनेजर बोलेंगे कि भाई यू आर जस्ट डूइंग योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट एक्स्ट्रा थिंग्स यू आर डूइंग। तो मैनेजर आके भाई सुनाएंगे कि भाई तेरे को बोनस क्यों दूँ इतना? ठीक है, तेरे को मैं बोनस दे भी दिया, तो क्या करेगा? व्हाट इज़ योर गोल? तो ये चीज़ है। दिवाली की छुट्टी, होली की छुट्टी, या तो न्यू ईयर की छुट्टी, एक दिन छुट्टी मिलेगा बस, बाकी दिन आप कुछ नहीं कर पाओ, ऑफिस जाके बैठना पड़ेगा, बिकॉज you need to prove yourself. You're getting so much of salary, you're getting 50-60 lakhs per annum, and अगर एक कंपनी ना इतना पैसा दे रहा है तो मतलब समझ लो वो लोग आपको खरीद चुके हैं, आप यू आर द बॉन्डेड लेबर। तो ये चीज़ है। तो these are the disadvantages of working in a high pay paying organization, and the versus the high pay low average paying organization. But what is the disadvantage? I have already covered. एडवांटेज एक ही है इन अ हाई पेइंग ऑर्गेनाइजेशन की,
अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो यू विल गेट ईयरली हाइक्स, तगड़ा हाइक मिलेगा. यू कैन बाई कार, यू कैन बाई अ हाउस फॉर योर सेल्फ, यू कैन गिव गुड एजुकेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये चीज़ है. सो मेरा मुद्दा है कि अगर आपके ऊपर फाइनेंशियली वो डिपेंडेंसी है कि आपको करना ही पड़ेगा, तो यू गो अहेड विद द हाई पेइंग जॉब्स, नो इश्यूज. अच्छा काम करो यार, जितना अच्छा करोगे उतना ज़्यादा हाई पेइंग करेगा. बट वही है कि आपका हेल्थ विल गो फॉर अ टॉस. सो आज का वीडियो इतना ही रहा. होप आप you have liked this video, and again I'm saying ki I have not covered anything which is bookish from a very common corporate crowd point of view. I've covered these points. So अच्छा लगे तो please like and subscribe करना, and I'll see you soon.